وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آگاہ کیا اور میں اپنی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کا، آپ کے تمام ڈاکٹرز کا، آپ کے پیرامیڈکس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جمع مردی سے، جس ہمت سے آپ یہ عہدہ برا ہو رہے ہیں، اس چیلنج سے آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہ صرف پاکستان میں ڈاکٹرز، آپ ہی کے کولیگز اور آپ کے بہت سے دوست ہوں گے جو آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے، جو آج امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں اور سروس وہاں انجام دے رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اپنی خدمات سے۔ اور آج بھی 2 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں ڈاکٹرز کی، پاکستانی ڈاکٹرز کی، برٹش پاکستانی ڈاکٹرز کی۔ امریکہ میں، برطانیہ میں آج وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کو اس طرح سر بلند کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے سفیر کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی خیر سگالی کے لیے جو وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ سب پر فخر ہے۔ مشکل حالات میں آپ نے کام کیا اور خدا کرے کہ ہم اس چیلنج سے نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحمت فرمائے، پوری دنیا پر رحمت فرمائے اور اس وبا سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور بالخصوص اس رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے شہریوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں خان صاحب نے یہ کہا کہ اشرافیہ کا فیصلہ تھا، آپ بھی کابینہ میں بیٹھتے ہیں، 3 صوبوں میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، یہ کون سی اشرافیہ تھی جس نے لاک ڈاؤن کا مشورہ دے دیا، یا وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کہ اشرافیہ کون ہے، وہ خود وزیر اعظم ہے؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہمارا ایک طبقہ ہے جس نے نیک نیتی سے، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے ایک طبقہ ہے جس نے نیک نیتی سے، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے نیک نیتی سے لاک ڈاؤن کا پرچار کیا اور ان کا مقصد یہی تھا کہ انسانی جانوں کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن ان کی نظروں سے ایک اور فیکٹر اوجھل ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں، اور یہ ایک بڑا مشکل بیلنس ہے جو آپ کو یہاں نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں، آج امریکہ میں بحث ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کس شدت کا ہونا چاہیے، کتنی اس کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کی جو اکانومیز پر اور ہنگر پر اور غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگوں کو دھکیل رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا۔ وہ ان کی سوچ کوئی منفی نہیں تھی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی تھی، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی ویریشنز ہوتی ہیں، اور ویریشنز کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے، جس کو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ اگر کہیں ہمیں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو ہمیں زیادہ سیویئر کرنا چاہیے، کہیں اگر ہمیں اس کا دباؤ کم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اتنا لوگوں کے لیے ایز پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ روزمرہ کی اپنی زندگی اور جو کاروبار ہے اور روزگار ہے اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، بیرون ملک سے پاکستانیوں کو وطن واپس لا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ کہ یہاں پر آ کر جب انہیں کوارنٹائن کیا جاتا ہے تو پھر پاکستانیوں کو احتجاج تک کرنا پڑا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مریضوں نے احتجاجی جلوس نکالا ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا، میں نے ٹیلی ویژن کی وہ خبر بھی دیکھی ہے، اور میں اندر یہی بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحبان سے کہ میں نے اخبارات میں یہ خبر بھی پڑھی ہے کہ مریضوں نے احتجاج کیا، اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا، جنہوں نے فی الفور اس کا نوٹس لیا، اس احتجاج کا انہوں نے نوٹس لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں
और ये कहना चाहूँगा कि जब ये आगाज़ हुआ तो सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर जो पंजाब में कायम किया गया वो मुल्तान में किया गया, और सबसे बड़ी तादाद में आज तक जितने मरीज किसी क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हैं वो मुल्तान में ठहरे हैं। 1250 मरीजों को मुल्तान ने रखा। वो 15 दिन ताफ्तान रहे और 15 दिन मुल्तान, 1 महीना। और खुदा के फजलो करम से जब उनको टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव अपना नेगेटिव होके वहाँ से रवाना हुए तो वो मुतमईन गए। तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी जिस तरह देखभाल की गई, मैंने मुल्तान की इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। हमारे कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारी जितनी टीम्स थी वहाँ, हमारे डॉक्टर्स जो थे, हमारे वहाँ सिविल डिफेंस के जो अहलकार जो वहाँ खड़े थे, सिविल डिफेंस के, पुलिस के जो लोग थे, सबको मैंने खराज तहसीन पेश किया। और यकीन जानिए उसमें सिविल डिफेंस के ऐसे लोग भी थे जिनको पिछले 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी, 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ड्यूटी सर अंजाम दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर आला इस चीज़ का नोटिस लेंगे और नोटिस लेकर देखेंगे कि वो लोगों ने एहतजाज किया तो क्यों किया। मुझे याद है कि मैं वजीर आज़म के साथ वहाँ गया था, हमें दिखाया गया था, जब अभी मरीज वहाँ नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था बज़ाहिर तो वो फैसिलिटी बहुत उम्दा दिखाई दे रही थी। अब ये देखने वाली बात है कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रवा मंथ के लास्ट वीक में पाकिस्तान में पीक आएगा कोरोना वायरस का, या इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब कोरोना में पीक आ रहा है उस वक्त पूरे मुल्क में नरमियाँ होती जा रही हैं, और आप स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन उस जगह होगा जहाँ पे ज़्यादा आपको केसेस नज़र आएंगे, ज़्यादा केसेस उस वक्त नज़र आएंगे जब आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी इतनी सी है, आप पूरे मुल्क को खोलते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सवाल बड़ा अच्छा है और बड़ा मंतकी सवाल है, और एक पढ़े लिखे आदमी के जहन में ये बात बैठती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये क्यों किया जा रहा है। हम समझते हैं, हुकूमत समझती है, वफाकी हुकूमत समझती है ये जो चैलेंज है ये लंबा है। हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये आज बहस पूरी दुनिया में हो रही है। तो हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक टेलर करनी पड़ेगी। हमने 2 महाजों पे लड़ाई लड़नी है। एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें, और दूसरी भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है कि वो भी गुर्बत और भूख भी लोगों को आज आप देखें, जब आप उस तबके से मिलते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है। मैं कल मुल्तान में था, मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं, ये पूरे साल की हमारी जो कमाई होती है ये ईद की माह रमज़ान के महीने में हमारी सेल्स होती हैं, हमारे बाजार बंद हैं, हमारे कारोबार बंद हैं, हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, और बहुत से लोग हैं जो छोटे ताजर जो सफ़ेद पोश हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें उनका भी सोचना है और इसका भी सोचना है। नंबर एक सेकंड जरा सब्र कीजिए। आप सवाल करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितने मर्जी सवाल करें, मैं इत्मीनान से खड़ा हूं। एक देखिए, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बोझ ले पाएगा? इस वक्त तक हमारे आप जरा एग्जामिन कीजिए कि वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं हमारे पाकिस्तान में। 22 करोड़ की हमारी आबादी है। 22 करोड़ की आबादी में जरा चेक तो कीजिए कितने वेंटिलेटर्स में हैं। बहुत कम, और खुदा करे कम ही हो, खुदा करे कम ही रहें। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की स्टेटिस्टिक्स जो बता रही हैं, और बहुत से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये बीमारी
आ भी सकती है, आपको छू कर जा भी सकती है और आपको शायद महसूस भी ना हो, यानी कि एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, ठीक। सो ये सारी चीजों को जब आप ज़हन में रखते हैं तो नेशनल प्लान जो है, नेशनल हिकमत अमली जो है, वो एक तकरीर पर या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं होती, आपको पूरी होलिस्टिक पिक्चर सामने रखनी होती है और तब फैसले करते हैं। वफाकी हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान उस होलिस्टिक पिक्चर को सामने रखकर आगे बढ़ रही है। वन एट ए टाइम आप फैसला कर लें, वन एट ए टाइम। चले आप इनको पहले इनको करने दें यार, उनको करने दो, क्या घबराहट की क्या बात है, आपको भी ले लेंगे जी। LOC पर इंडिया फायरिंग कर रहा है, फॉरेन ऑफिस ने किस चीज को एंगेज किया और उसके नताइज क्या हैं? हिंदुस्तान बदकिस्मती से उन्हें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है, उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। हमारा ख्याल था कि कोविड-19 के बाद उनकी जहनीत में, उनके रवैयों में तब्दीली आएगी, नहीं आई। आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का जो सीज है वो जारी है। आपने देखा कि वहाँ इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं हुआ। आपने देखा आज तक हस्पतालों तक, डॉक्टर्स तक वहाँ जो कश्मीरी हैं, जो मैसूर हैं, उनको रसाई नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ जबर जारी है, जुल्म जारी है। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। कल रात का एक वाकया है, ये लोगों के घरों में घुसते हैं, लोगों के घरों में घुसकर उन्हें ज़दोकोब करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको मारते हैं। और नया जो उन्होंने हरकत शुरू की है कि जो लाशें हैं मेरा चेहरा देख लेंगे, कोई बात नहीं, जो लाशें हैं वो लाशें लवाहिकीन को वापस तक नहीं करते। ये आज कैफियत है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ने, दफ्तर खारजा ने, उनके जो यहाँ सफारतकार हैं, उनको बुला के हमने डिमाश किया है। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त लिखा है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो इस पर दिलवा चुका हूँ और फिर दिलवा रहा हूँ कि इनको फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए। और इस रवैये के बावजूद जब हमें हिंदुस्तान से पैगाम मिला कि वो कोविड-19 पर एक समिट लेवल की मीटिंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान जानते हुए कि सार्क को हिंदुस्तान ने, सार्क के रास्ते में रुकावट बना हुआ हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, उसके बावजूद हमने इंसानी तकाज़ों को रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरी ख्वाहिश पर, मैं बरमला कह रहा हूं, मेरी ख्वाहिश पर सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने हमारी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान ने मेजबानी का किरदार अदा किया। तो इंशाल्लाह हम मजम्मत भी करेंगे और हर फोरम पे इसको टेकअप भी करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो मीर शकील रहमान को मीडिया फिरौन कहते हैं और दूसरी तरफ उनको सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी रूम दिया गया है। किस बेस पे उनको वीवीआईपी रूम दिया जबकि जो जेल वार्ड है वो खाली पड़ा है? बीबी आई एम हियर टू डिस्कस इश्यूज नॉट इंडिविजुअल्स। वो ये कह रहे हैं कि उनको रिहा कर देना, थोड़े बीमार हैं। मेरा सवाल ये है, वो फैसला डॉक्टर्स ने करना, मैंने तो नहीं करना। अस्पताल के अंदर, इसी अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर पर जो मरीज था कोरोना वायरस का, उससे बाहर से अद्वियात मंगवाई गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पंजाब हुकूमत तो बड़े इकदाम कर रही है, यहाँ के प्रोफेसर बाहर से अद्वियात लिख कर देते हैं, वहाँ पर मैं एक सेकंड, मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। सुन ले, मैं तो खिदमत के जज्बे से आया हूँ। मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप मुल्तान गए हैं मास्क लेके, तो हमारा भी हक है। तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, मैं इनकी खिदमत में हाजिर हो गया और जो एक हकीर सा नजराना पेश कर सकता था वो किया। बाकी ये सवालात मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब से कीजिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने चाइना ने
पाकिस्तान को वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए कहा था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है या दीगर दुनिया के जो ममालिक हैं जिसमें हमारा सारी दुनिया से मेरे भाई ह्यूमन ट्रायल किस फेज पर इस तक पहुँच चुके हैं? मेरे इल्म में नहीं है कि ह्यूमन ट्रायल यहाँ है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछ के अर्ज़ कर सकूँगा, लेकिन पाकिस्तान का राब्ता पूरी दुनिया से है, सिर्फ चीन से नहीं है। चीन हमारा दोस्त है और चीन ने हमारे इस आड़े वक्त में बड़ी मदद की है। आपने देखा कि यके बाद दीगर वहाँ मुख्तलिफ जहाज़ आते रहे हैं और आ रहे हैं और वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं अपनी जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेसिडेंट शी का और चीनी अवाम का और हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा आखिरी सवाल के यंग डॉक्टर्स पिछले दिनों भूख हड़ताली कैंप पर बैठे रहे, फिर पंजाब हुकूमत के साथ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मुज़ाकरात हो गए, उसके बारे में क्या कहना है कि इतना लेट नहीं किया गया? आपने जनूबी पंजाब के अंदर खुद कौन से सेक्रेटरी हेल्थ? यहाँ तो एक से ज़्यादा है ना। सेक्रेटरी हेल्थ है, वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, चट्ठा साहब है, वो तो बड़ा सेक्रेटरी पंजाब है, पंजाब के, उनके साथ मीटिंग हुई। एक है? जी जी, कितने हैं? एक ही है। नहीं, स्पेशलाइज का एक ही है ना, जो यंग डॉक्टर भाईजान 2 हैं मेरे इल्म के मुताबिक। स्पेशलाइज का एक अच्छा, सर आप तो आप सवाल बताएं, क्या करना है? सवाल क्या क्या है? सवाल पर है। सर अब ये बताइएगा कि अब हमारा जो बैरूनी दुनिया के साथ जो हम लिंक करने जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में लॉकडाउन नरम हो जाएगा, क्या स्ट्रेटजी आप देख रही हैं? मईशत पे कितना नुकसान पड़ेगा, शॉर्टली बता और दीजिए। चाइना मईशत पे देखिए, मईशत पे गहरे असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, गिर चुकी हैं। आपकी मंडियां कहाँ हैं? आपकी बहुत बड़ी मंडी है यूरोप और आपकी बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका। आज अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, आप यूरोप की कैफियत आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और उसका आपकी ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पर असर होगा। आपकी बहुत बड़ी लेबर जो है फोर्स है गल्फ में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों की, क्रूड ऑयल की कीमतों की कैफियत कहाँ आई है? नीचे आई है। तो वहाँ ले ऑफ्स के इम्कानात हैं। आज जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं और वापस आना चाहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ एक स्लो डाउन है, एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है और उसकी वजह से जो हमें रेमिटेंसेस आते थे उसका भी इम्पैक्ट होगा। हमारी जो ग्रोथ है वो भी कम होगी और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है और कम से कम उनका अंदाज़ा है कि 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी और अगर 3% कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट मीन्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकॉनमी पर। तो पाकिस्तान उस ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया और वो ग्लोबल इनिशिएटिव है डेट रिलीफ का। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान जैसे उन 75 दीगर ममालिक की आवाज़ बुलंद की जो कि इंडेटेड हैं और वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और उनके पास फिस्कल स्पेस जो है वो लिमिटेड है और उस फिस्कल स्पेस के लिए वो कह रहे हैं कि आप हमें डेट रिलीफ दें। जब आप हमें डेट रिलीफ देंगे तो वो पैसा जो हमें दस्तयाब होगा वो पैसा हम खर्च कर सकेंगे अद्वियात पर, लोगों की जानों को बचाने के लिए, वेंटिलेटर्स की खरीद पर, हॉस्पिटल्स को ज़्यादा इक्विप करने के लिए। तो उस पर भी हमें ट्रैक्शन मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ हमारा राब्ता है। हमारे जो मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब न्यूयॉर्क में, उनको मैंने हिदायत दी है, उन्होंने वहाँ एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया है और वो दीगर ममालिक से राब्ते कर रही हैं जो पाकिस्तान की इस सोच के साथ हम आहंग हैं, ताकि हम यकज़बा होकर जो G20 है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बात करें कि डेट रिलीफ दिया जाए डेवलपिंग वर्ल्ड को। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।